without you. Good morning. Welcome to my channel RNT classes. Today we will study about the type of ovule. Type of ovule. On the basis of position, the ovule are classified into 2 points, that is on the basis of position and on the basis of number of integument. Now on the basis of position, of micropyle, chalaza and funicle, the ovule is following types, that is orthotropous ovule, anatropous ovule, hemitropous ovule, campylotropous ovule, amphitropous ovule and sarcinotropous ovule. Now first of all, orthotropous ovule. In this type, the micropyle, chalaza and funicles are in a straight line. This is the most primitive ovule. For example, betel, pepper, polygonum, etc. That means orthotropous ovule. In this type of ovule, the micropyle, chalaza and funicle, present in straight line. Thus, this type of ovule is known as orthotropous ovule. Orthotropous ovule is the most primitive ovule, and example betel, pepper and polygonum, etc. Now second, anatropous ovule. In this type of ovule, when the body of orthotropous ovule rotate at 180-degree angle, I mean in anatropous ovule, when the body of ovule rotate 180-degree angle, as a result the micropyle and funicle reach to close to each other and chalaza is in front of micropyle. Thus in this type, the ovule rotate at 180-degree angle and the micropyle reach near the hilum. Thus it is inverted ovule, and 82% angiospermic plant have this type of ovule. For example, pea, gram, bean, etc. Now in this ovule, the body of ovule is rotated 180-degree angle. As a result, the micropyle reach to the hilum of funicle. Thus, in this type of ovule, the micropyle and funicle are close to each other, while the chalaza is in front of micropyle. And 82% angiospermic plant have this type of ovule. Now, hemitropous ovule. In this type of ovule, when the body of ovule rotate only 90-degree angle, as a result the micropyle and chalaza are present to the parallel, while the funicle is not. Then this type of ovule is known as hemitropous ovule. In this type, ovule turns at 90-degree angle upon the funicle, or body of ovule is at right angle to the funicle. For example, ranunculus. Now fourth, campylotropous ovule. In this type of ovule, the body become curved. As a result, the position of micropyle is not fixed. It may be slightly to the funicle. In this type, the ovule curved more or less at right angle to the funicle. As a result, micropyle bend down slightly. For example, family Leguminosae and Cruciferae. Now, fifth, amphitropous ovule. In this type of ovule, the embryo sac become more curved and become horseshoe shaped, घोड़े के नाल के आकार का, become horseshoe shaped. Then this type of ovule is known as amphitropous ovule. In this type, the embryo sac curved more and become horseshoe shaped. For example, lemna, poppy and alisma. Now last, sarcinotropous ovule.
in this type of ovule, the body of ovule rotate 360 degree, 360 degree, and funicle coiled around the ovule. And in this type of ovule, the funicle is more long and it coiled around the ovule. Then this type of ovule is called Sarcinotrapus ovule, and it is present in the family Cactaceae. For example, Apuntia, that means नागफनी. नाउ इन हिंदी, अब हम लोग हिंदी में भी एक बार इसको समझ लेते हैं. तो कहा गया है टाइप ऑफ ओव्यूल. तो ओव्यूल को दो पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड किया गया है. पहला है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. दूसरा है नंबर ऑफ इंटीगुमेंट की संख्या के आधार पर. तो कहा गया है क्या कि पोजीशन के आधार पर, तो कहा है पोजीशन के माइक्रोकाइल चलाजा और फ्यूनिकल के पोजीशन के आधार पर ओव्यूल 6 प्रकार के होते हैं. पहला देखते हैं आर्थोट्रापस ओव्यूल. तो वे ओव्यूल जिसमें माइक्रोकाइल, चलाजा और फ्यूनिकल तीनों एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं, तो इस टाइप के ओव्यूल को आर्थोट्रापस ओव्यूल कहा जाता है. बीटल, पीपर और पॉलीगोनम में इस टाइप के ओव्यूल पाए जाते हैं. और आर्थोट्रापस ओव्यूल सबसे प्रिमिटिव ओव्यूल होता है. सबसे प्रिमिटिव ओव्यूल जो है ये आर्थोट्रापस ओव्यूल होता है. तो कहा गया वे ओव्यूल जिससे माइक्रोकाइल, चलाजा एंड फ्यूनिकल एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं, तो ऐसे ओव्यूल को आर्थोट्रापस ओव्यूल बोला जाता है. आर्थोट्रापस ओव्यूल जो होता है यह बीटल, पीपर और पॉलीगोनम में पाया जाता है. आर्थोट्रापस ओव्यूल सबसे प्रिमिटिव ओव्यूल होता है. दूसरा एनाट्रोपस ओव्यूल. तो कहा गया है जब आर्थोट्रापस ओव्यूल जो होता है वह 180 डिग्री एंगल पर घूम जाए, 180 डिग्री कोण पे घूम जाए, जिसके परिणाम स्वरूप माइक्रोकाइल और फ्यूनिकल एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं, तो इस टाइप के ओव्यूल को एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं. एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 82% जो प्लांट होते हैं या 82% जो फैमिली या प्लांट होते हैं उनमें इसी एनाट्रोपस टाइप का ही ओव्यूल पाया जाता है. अब तीसरा आता है हेमीट्रापस ओव्यूल. तो कहा गया है जब ओव्यूल का बॉडी जो है क्या हो 90 डिग्री एंगल पे 90 अंश के कोण पर जब घूम जाता है, तो जो ओव्यूल बनता है उसे हम हेमीट्रापस ओव्यूल कहते हैं. हेमीट्रापस ओव्यूल जो होता है इसमें माइक्रोकाइल और चलाजा एक दूसरे से एकदम पैरेलल होते हैं, एकदम सीध में होते हैं, और यह जो होता है रेननकुलस में पाया जाता है. कैम्पिलोट्रापस ओव्यूल. तो इस टाइप के ओव्यूल में क्या होता है पूरे ओव्यूल का बॉडी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जिससे माइक्रोकाइल का पोजीशन फिक्स नहीं रहता है, और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि माइक्रोकाइल फ्यूनिकल के काफी नजदीक आ जाता है. तो इस टाइप के ओव्यूल को बोला जाता है कैम्पिलोट्रापस ओव्यूल. मतलब वे ओव्यूल जिनमें उसका बॉडी टेढ़ा मेढ़ा हो तो हम सीधे बोल देंगे वह किस टाइप का ओव्यूल है, कैम्पिलोट्रापस टाइप का ओव्यूल है. पांचवा है एम्फीट्रापस ओव्यूल. यह भी ओव्यूल बहुत इजीली हम पहचान सकते हैं. तो वो ओव्यूल जिसमें एम्ब्रियो सैक जो होता है वह मुड़ करके घोड़े के नाल के आकार का, कैसा, घोड़े के नाल के आकार का हार्स शेप्ड हो जाता है, तो ऐसे ओव्यूल को बोला जाता है एम्फीट्रापस ओव्यूल. और एम्फीट्रापस ओव्यूल जो था लेम्ना, पॉपी और एलिस्मा में पाया जाता है. लास्ट है सर्सिनोट्रापस ओव्यूल. तो वे ओव्यूल जिनमें बॉडी 360 डिग्री एंगल पर घूम जाए और फ्यूनिकल काफी लंबा होकर के ओव्यूल के चारों तरफ लिपट जाए, यानी उसके चारों तरफ घेरा बना ले, क्वाइल्ड कर ले, तो ऐसे ओव्यूल को बोला जाता है सर्सिनोट्रापस ओव्यूल. और यह जो होता है कैक्टेसी फैमिली जो होते हैं, यानी जो जीरोफिटिक प्लांट, मरुस्थल में जो प्लांट उगते हैं उनमें यह पाया जाता है. उसका एग्जाम्पल क्या, अपुंसिया, जिसे नागफनी कहते हैं. Now second type, on the basis of number of integument. On the basis of number of integument, the ovule is following 3 types. That is ategmic ovule, unitegmic ovule and bitegmic ovule. Now ategmic ovule, those ovule in which integument absent called ategmic ovule. For example, Santalum, Lorenthus and Olex. Lorenthus is a parasite. Now unitegmic ovule,
those ovule in which only one integument present called unitegmic ovule. For example, member of gymnosperm and gamopiteli. Now third, bitegmic ovule, those ovule in which two integuments present called bitegmic ovule. For example, member of monocot and polypetally. नाउ इन हिंदी, हम हिंदी में देख लेते हैं। तो कहा गया इंटीगुमेंट के संख्या के आधार पर ओव्यूल कितने प्रकार के होते हैं। तो कहा गया इंटीगुमेंट की संख्या के आधार पर ओव्यूल 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें क्रमशः एटेगमिक ओव्यूल, यूनिटेगमिक ओव्यूल और बाइटेगमिक ओव्यूल कहते हैं। वे ओव्यूल, पहला एटेगमिक ओव्यूल, तो वे ओव्यूल जिनमें इंटेगुमेंट एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है, तो ऐसे ओव्यूल को एटेगमिक ओव्यूल कहते हैं। सेंटेलम, लोरेंथस और ओलेक्स इसके एग्जाम्पल है, जिसमें लोरेक्स एक पैरासाइट परजीवी पौधा होता है। दूसरा है एटेगमिक ओव्यूल, तो वे ओव्यूल जिनमें केवल एक इंटेगुमेंट पाया जाता है उसे हम यूनिटेगमिक ओव्यूल कहते हैं। और यूनिटेगमिक ओव्यूल जो होता है वह जिम्नोस्पर्म और गैमोपिटैली में पाया जाता है। बाइटेगमिक ओव्यूल, तो वे ओव्यूल जिनमें 2 इंटेगुमेंट पाए जाते हैं उन्हें बाइटेगमिक ओव्यूल कहते हैं। और यह जो होता है मोनोकाट यानी एक बीजपत्री पौधे और पॉलीपिटैली में पाया जाता है। दैट्स ऑल।